hallmark of drill on display today. If you look behind the civilian chairs, you will notice 9 regimental training center military bands playing the tune Brahmaputra under the directions of Subala Major Soman Singh of one single training center. Overall coordination of the band is under the command of Major Bhusa, Inspector of Army Bands. The parade, as you can see, has formed up. Behind the band on the ramparts of the magnificent fortress is the lineup of buglers attired in multicolored ceremonial uniforms. The medals on the chest of these brave soldiers exemplify patriotism, devotion to duty, spirit of self-sacrifice, bravery and valor. The Indian Army is proud of them, and so are we as a nation. Ladies and gentlemen, we now wait the arrival of the Parade Second Command Brigadier Adjutant General Headquarters, Delhi area. आज की यह भव्य परेड पहले की आयोजित परेडों से अलग है, कई मायनों में अभूतपूर्व। घुड़सवार दस्ते की दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं, हाथों में 75 ध्वज लिए द ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स का दस्ता। ध्वज जो प्रतीक है भारतीय सेना की विभिन्न फॉर्मेशन से। 1940 के दशक की भर्ती में 303 राइफल के राजपूत रेजिमेंट कंधे पर हथियार रखकर चलने की मुद्दा सरकारी ड्रिल का हिस्सा थी, और आज उसी ड्रिल में यह दस्ता आपके समक्ष मार्च करेगा। असम रेजिमेंट का दस्ता धारण किए हैं 1960 के दशक की भर्ती और 303 राइफल 1962 और 1965 के युद्ध की साक्षी। जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का दस्ता हाथों में 7.62 मिलीमीटर सेल्फ लोडिंग राइफल। ये वर्दी और हथियार जवाब है सन 1971 की जीत के। भारतीय सेना की मौजूदा वर्दी में सेना हाई कोर का दस्ता और हाथों में सीमाओं की रक्षा करता आज का हथियार 5.56 मिलीमीटर इंसास राइफल। साथ ही गर्व से खड़ा है मनोज मेरे पहले पैराशूट रेजिमेंट का दस्ता। धारण किए हैं भारतीय सेना की नवीनतम डिजिटल पैटर्न कॉम्बैट वर्दी, जो पहली बार प्रदर्शित की जा रही है। Ladies and gentlemen, as you can see, we have an array of weapons and equipment depicting the vintage and the contemporary. What was challenging was to put this assortment of weapon systems and related different ceremonial drills into an integrated and uniform format. To execute what you see before you, a superbly synchronized and meticulous drill of the highest standard under the aegis of the quarter Delhi area. And all this under one word of command, which is truly commendable indeed. Quarter the snow silently when the music falls, we shall rise marching in. It is to a corner of the world's most inhospitable, coldest, highest background, this gathering will gather. The Indian Army is a symbol of nation building, always in the service of the nation in both peace and war, operationally well seasoned and always ready for achievement of the national objectives. It is a professional army based on values, experience, regimentation, customs, traditions, ethos and culture. एक सैनिक की शख्सियत सबसे अलग है। वो राष्ट्र के लिए जीना, राष्ट्र के लिए स्वेच्छा से मृत्यु स्वीकार करना उसका कर्तव्य है। वह कहता है जोखिम उठाने में मेरी महारत। मैं बाधाओं से नहीं, बाधाएं मुझसे डरती हैं। मैं जब एक बार राष्ट्र के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेता हूं, तो उसे पाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देता हूं। राष्ट्र के लिए हर संभव कार्य करना मेरे लिए सम्मान है, अभिमान, गर्व। Ladies and gentlemen, the Brigadier Adjutant General Headquarters, Delhi area has just arrived. स्टेज और सलामी देना
आज से परेड एडजुटेंट है लेफ्टिनेंट वरुण प्रताप सिंह। वे ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी के स्नातक। इन्होंने वर्ष 2020 में ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी चेन्नई से कमीशन प्राप्त किया। परेड एडजुटेंट परेड 2IC को रिपोर्ट देने के लिए अग्रसर हो रहे। कदमों में विश्वास, भारतीय सैन्य शक्ति, चेहरे पर चमक, राष्ट्रीय गर्व, राष्ट्र के सौभाग्य का तिलक मेरे मस्तक पर है। देश प्रेम का वस्त्र परिधान मेरे शरीर पर। एक ही लक्ष्य, एक ही नीति, भारतीय सेना की नियत, विजय या जीत। एक शपथ, चिरकालीन शपथ, अपने जीवन का क्षण क्षण तिरंगे के बाद देता हूं। मादरे वतन की एक शपथ पर सारी गुजारना। श्रीमान सेना दिवस परेड 19 अधिकारी बावन सरदार साहिबान 1365 डंडे पर परेड बस। भाई पीछे दोस्त ऐसे मत करो यार, आगे मत करो। Now, the parade line is moving into the sign station. Brigadier Sanatan Singh, Vishisht Seva Medal, Brigadier Admiral General, Headquarters, Delhi Air. Brigadier Sanatan Singh is an admiral of National Defence Academy, Haridwar. On graduating from Indian Military Academy on 19 December 1990, he was commissioned into 93 Field Regiment in the Regiment of Continent. He later commanded the same regiment in Jammu and Kashmir. In a career spanning nearly 3 decades, the officer has served in all types of operational environments, including Siachen Glacier and counter-terrorist duties in Jammu and Kashmir. The officer has presented prestigious instructional and staff appointments to include Instructor Class B at Purafasuri Devlali, Colonel General Staff with Artillery Directorate, and Colonel General Staff with Army Standing Establishment Committee at Army Headquarters. The officer was part of the team who raised and inducted remotely piloted aircraft into Indian Army. The officer has the distinction of attending prestigious High Defence Management course at College of Defence Management, Secunderabad. For his distinguished service, the officer has been awarded the Chief of Army Staff Commendation Card and Vishisht Seva Medal. In his last assignment, the officer commanded an independent artillery brigade in Ladakh during Operation Snow Leopard, before taking over as Brigadier Adjutant General Headquarters Delhi area on 5th February 2021.
उम्मीदवारों, विदेशी दूतावास के प्रतिनिधियों, उपस्थित अतिथिगण और मीडिया जगत के साथियों को तहे दिल से मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और जय हिंद। सबसे पहले मैं पुरस्कार विजेताओं और यूनिट साइटेशन प्राप्त करने वाले यूनिट्स को मुबारकबाद देना चाहता हूं। शाबाश। राष्ट्र को और सेना को आपके उपलब्धि पर अत्यंत गर्व है। आज की शानदार परेड में हिस्सा लेने वाले सभी ऑफिसर्स, जेसीओज और जवानों को भी एक प्रभावशाली परेड के लिए मेरी शाबाशी। वेल डन। देश की रक्षा एक सैनिक का सर्वोच्च धर्म है, चाहे इसके लिए उसे अपने प्राण भी क्यों ना न्योछावर करने पड़े। आज हम उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा में वीरगति प्राप्त की है। उनकी शहादत समस्त देश और भारतीय सेना के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं उनके परिवारों को विश्वास दिलाता हूं कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़े रहेंगे। पिछला वर्ष सेना के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण रहा। उत्तरी सीमाओं पर चीन के साथ चल रहे घटनाक्रम से आप परिचित हैं। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए दोनों देशों के बीच सीनियर मिलिट्री कमांडर्स की हाल में ही 14वीं दौर की वार्ता संपन्न हुई है। अलग अलग स्तर पर संयुक्त प्रयासों से कई इलाकों से डिसएंगेजमेंट हो चुका है। ये अपने आप में एक सकारात्मक कदम है। म्यूचुअल और इक्वल सिक्योरिटी के सिद्धांत पर मौजूदा स्थिति का हाल निकालने के लिए हमारे प्रयास जारी रहेंगे। देश की रक्षा में बर्फीली चोटियों पर तैनात हमारे सैनिकों का मनोबल आसमान छू रहा है। हमारा धैर्य हमारे आत्मविश्वास का प्रतीक है, लेकिन कोई भी इसकी परीक्षा लेने की गलती ना करे। हमारा मैसेज क्लियर है। भारतीय सेना सीमाओं पर एक तरफा यथास्थिति को बदलने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने देगी। नियंत्रण रेखा पर स्थिति बीते साल की तुलना में बेहतर है। पिछले वर्ष फरवरी में हुई डीजीएमओस के बीच अंडरस्टैंडिंग के बाद सीज फायर वायलेशंस पर काफी हद तक रोक लगी गई, लेकिन पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने की अपने आदत से लाचार है। सीमा पार प्रशिक्षण शिविरों में तकरीबन 300 से 400 आतंकवादी घुसपैठ करने के अवसर की तलाश में बैठे हैं। सरहद पार से ड्रोन्स द्वारा हथियारों की स्मगलिंग की कोशिश भी जारी है। नियंत्रण रेखा पर हमारे सक्रिय ऑपरेशन और मजबूत काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड से घुसपैठ की अनेक कोशिशों को नाकाम किया है। जम्मू और कश्मीर के आंतरिक इलाकों में पिछले 2 सालों से प्रगतिशील सुधार हुआ है। इसके चलते सरहद पार से समर्थित आतंकवादी तंजीमों की कोशिश रही है कि विकास की गति पर रोक डालना, और ये साजिश तेज कर दी गई है। गैर स्थानीय लोगों और गरीब मजदूरों को निशाना बनाना